وعلى آله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وللآخرة خير لك من الأولى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على النبي الأمي وآله وأصحابه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. حمد و ثنا کے بعد معزز محترم و محتشم عزیزان گرامی قدر، آج کی یہ خوبصورت سی محفل پاک، محفل میلاد بسلسلہ 1500 سالہ جشن ولادت ہے، بارگاہ رب العزت میں دعاگو ہوں مالک لم یزل اس بابرکت محفل پاک کو اپنی بارگاہ صمدیت میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج کی محفل کے صدر محفل حضرت علامہ مولانا محمد صابر اختر القادری صاحب، میزبان محفل حضرت علامہ مولانا محمد شیراز قادری صاحب، امام و خطیب مسجد حاضہ، اور تمام حاضرین کو آج اس بابرکت محفل کے انعقاد پر دل کی اتحاد گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سرکار کا ذکر خیر کریں گے اور یاد رکھنا حضور کا ذکر وہی کرتا ہے کہ جسے حضور کی بارگاہ سے اجازت ملتی ہے۔ حضور کا ذکر وہی کرتا ہے کہ جسے سرکار کی بارگاہ سے اجازت ملتی ہے، اس لیے کہ ہمیں ہمارا بابا یہ بتا کے گیا ہے کہ ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا، ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا، ورنہ خوشی میری طرف دیکھ کر مسکرائی کیوں۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا، ورنہ خوشی میری طرف دیکھ کر مسکرائی کیوں۔ تو جس کو حضور پسند فرماتے ہیں وہی حضور کا ذکر خیر کرتا ہے، جس کو حضور پسند فرماتے ہیں وہی حضور کا ذکر خیر کرتا ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کریم نے کرم کیا ہے اور آپ حضور کی محفل میں چلے آئے۔ میرے بھائیوں، سرکار کا ذکر خیر کر رہے ہیں، یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے لے کر آخری انسان تک اس میں جتنی خوبیاں تھیں، مالک لم یزل نے وہ ساری خوبیاں جس ہستی میں یکجا فرمائی ہیں، وہ ہستی میری اور آپ کی محبوب ہستی آمنہ کی ذات کے لال میں جمع فرما دی ہے۔ سارے خصائص، سارے کمالات، سارے فضائل، ساری عظمتیں، ساری فضیلتیں جو مالک نے آدم سے لے کر آخری انسان تک کو دینی تھی، سب فضیلتیں اللہ نے حضور کی ذات میں جمع فرما دی ہیں۔ اور یاد رکھنا اس کائنات میں جتنے بھی کمالات بکھرے ہوئے تھے
وہ بھی اللہ نے حضور کی ذات میں جمع فرما دیے ہیں۔ اور پھر پروردگار نے یہ حکم بھی ارشاد فرمایا ہے کہ میرے نبیوں کا ذکر خیر کرو۔ قرآن میں نا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، اے لوگو ہمارے نبی کی باتیں لوگوں کو بیان کرنا، وَلَا تَكْتُمُونَهُ چھپانا نہیں، نبیوں کے قصے بیان کرنا چھپانا بولو نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، اور نبیوں کے قصے بیان کرنا رسول اللہ کی سنت ہے اور انبیاء کا وظیفہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور کا ذکر خیر جناب آدم سے ہوتا ہوتا جناب عیسیٰ تک چلا، اور جناب عیسیٰ نے کیا فرمایا؟ مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اے لوگو اب اس نبی کا زمانہ آنے والا ہے کہ جس کا نام نامی اسم گرامی محمد ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں یہ آپ کا قول ہے، یہ حدیث نہیں ہے، مگر اس پر محدثین کرام فرماتے ہیں ابن عباس کا قول یقیناً رسول اللہ کو سن کر ہی آپ نے بیان کیا ہوگا، خود سے یہ بات نہیں کہی ہوگی۔ جناب ابن عباس کیا فرماتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ وہ نبی آنے والا ہے، اس پر آپ ایمان لائیے اور اپنی امت کو بتلائیے اس نبی پر ایمان لائیں، اور پھر ساتھ میں یہ بھی فرمایا وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، اللہ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت مجھے جلال کی قسم، اے عیسیٰ اگر میں اس محمد کو پیدا نہ فرماتا، نہ جناب آدم کو پیدا کرتا، نہ جنت کو پیدا کرتا، نہ زمین و آسمان کو پیدا کرتا۔ ساری کائنات رسول اللہ کے لیے پیدا کی گئی، اس لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ سرکار وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ کائنات کا یہ شامیانہ، زمین کا بچھونا، یہ شجر و حجر، یہ کمکمے، یہ آبشارے، یہ رونقیں، یہ بہاریں فقط رسول اللہ کی ذات کی وجہ سے ہیں۔ تو پھر جب ہی میرے امام کیا فرماتے ہیں؟ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ وہ ساری کائنات کا یہ شامیانہ اللہ نے آپ کے لیے سجایا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی شان کا کیا کہنا، بس میں یہ سمجھتا ہوں حضور آپ کی یہ جو شان ہے نا، لولا کا، کہ اے محبوب اللہ فرماتا ہے اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا، ما خلقت الدنیا، میں دنیا کو پیدا نہ کرتا۔ جناب شیخ سعدی فرماتے حضور ساری شانیں آپ کی اپنی جگہ، مگر یہ جو آپ کی شان امتیازی ہے نا، اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا، جناب آدم کو بھی پیدا نہ کرتا، جناب شیخ سعدی فرماتے حضور اس سے بڑھ کر میری نظر میں آپ کی کوئی شان ہو ہی نہیں سکتی زیادہ افضل کہ رب نے آپ کی وجہ سے ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اے محبوب آپ کا ہر آنے والا لمحہ گزشتہ لمحے سے بہتر ہے۔ اس کائنات کے لمحات کی تعداد متعین نہیں کی جا سکتی، لمحات کو گنا نہیں جا سکتا، تو جب لمحات کو گنا نہیں جا سکتا، ہر لمحے میں اللہ اپنے نبی کے کمالات میں جو اضافہ کر رہا ہے تو اس کو بھی گنا نہیں جا سکتا، تو قیامت تک ان لمحات میں اضافہ ہوتا رہے گا اور اللہ اپنے حبیب کی شان بھی بڑھاتا رہے گا۔ یا رسول اللہ۔ تو یاد رکھیے گا یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ ہماری خوش نصیبی ہے اللہ نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا فرمایا ہے، جس نبی کی شان یہ ہے، جس نبی کا مقام یہ ہے، جس نبی کی عظمت یہ ہے
جس نبی کی فضیلت یہ ہے کہ انبیاء بھی تمنا کریں کہ اے پروردگار اس امت جیسی امت ہمیں عطا فرما، تو جس نبی کی امت کا عالم یہ ہے کہ انبیاء بھی کہیں مالک وہ امت ہمیں عطا فرما، تو جس نبی کی امتوں کی شان یہ ہے، تو پھر ایمان سے بتاؤ امام الانبیاء کی شان کیا ہو؟ اور پھر ہم حضور کا میلاد کیوں نہ منائیں؟ سنو، حضور کا میلاد کیوں نہ منائیں؟ حضور کا ذکر خیر کیوں نہ کریں؟ حضور سے اپنی محبتوں کا ثبوت کیوں نہ دیں؟ جس نبی کے صدقے اللہ نے ہمیں یہ شان عطا فرمائی ہے کہ قرآن ہمیں یہ ٹائٹل دے رہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے امت محمدی تم بہترین امت ہو۔ یہ ٹائٹل پہلے بنی اسرائیل کے پاس تھا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ پہلے یہ اعزاز بنی اسرائیل کے پاس تھا، اے گروہ بنی اسرائیل تم افضل ترین امت ہو۔ جب اللہ نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا فرمایا، اللہ فرماتا ہے اے امت محمدی تم ساری امتوں سے افضل ترین امت ہو۔ تو یہ اعزاز ہمیں حضور کی وجہ سے ملا ہے۔ تو میرے امام کیا فرماتے ہیں؟ عطائے عرب، جلائے کرب، فیوز عجب، بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب؟ برب جہاں تمہارے لیے۔ حضور یہ ساری عظمتیں ہمیں آپ کے دم سے ملی ہیں، یہ ساری فضیلتیں ہمیں آپ کے دم سے ملی ہیں، تو اس نبی کا پھر میلاد نہ منائیں، اس نبی کا پھر ہم ذکر خیر نہ کریں، اس نبی سے ہم اپنی محبت و معدت کا اظہار نہ کریں۔ میرے مدنی آقا ایک دفعہ حضور اپنے حجرہ نوری سے تشریف لائے تو صحابہ بیٹھے تھے اور صحابہ نبیوں کا ذکر کر رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ دیکھو جناب آدم کی شان کیا ہے، اللہ نے بغیر باپ بغیر ماں کے پیدا کیا، جناب آدم صفی اللہ ہیں۔ حضرت نوح کی شان کا کیا کہنا، وہ نجی اللہ ہیں۔ جناب موسیٰ کی شان کا کیا کہنا، اللہ نے ان سے کلام کیا، وہ کلیم اللہ ہوئے۔ جناب عیسیٰ کی شان کا کیا کہنا، بغیر باپ کے پیدا کیا، وہ روح اللہ ہوئے۔ اسماعیل ذبیح اللہ ہوئے، ابراہیم خلیل اللہ ہوئے۔ صحابہ بیٹھ کے نبیوں کی شانیں بیان کر رہے تھے، تو گویا کہ نبیوں کی شانیں بیان کرنا یہ صحابہ کی سنت ہے، اور رسول اللہ نے خود اپنی شان بیان کی، یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ حضور تشریف لائے، حضور نے فرمایا ہاں ہاں آدم صفی اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، اور یاد رکھو اللہ نے مجھے حبیب اللہ بنا کر بھیجا ہے۔ ولا فخر، اور مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں ہے، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ اور پھر حضور نے فرمایا ہاں ہاں یہ سارے نبی بڑی شان والے ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا جانتے ہو میں کون ہوں؟ فرمایا میں وہ ہوں کہ جس کے جھنڈے کے نیچے سارے نبی ہوں گے جن کا تم نام لے رہے تھے۔ یہ سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، لواء الحمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ ابراہیم خلیل اللہ بھی میرے جھنڈے کے نیچے، موسیٰ کلیم اللہ میرے جھنڈے کے نیچے، عیسیٰ روح اللہ میرے جھنڈے کے نیچے، نوح نجی اللہ میرے جھنڈے کے نیچے۔ جن کی تم شانیں بیان کر رہے ہو، قیامت کا دن ہوگا، لواء الحمد کا جھنڈا ہوگا اور سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ تو حضور کی شان کا کیا کہنا، اور پھر حضور نے اپنی شان خود بیان کی۔ فرمایا ہاں، فرمایا جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں جو سب سے پہلے جنت کے دروازے پہ دستک دوں گا، اور سب سے پہلے شفاعت میں کرواؤں گا، جنت کا دروازہ میرے لیے کھلے گا، جنت سب سے پہلے میں جاؤں گا، سب سے پہلے امت میری داخل ہوگی۔ فرمایا ہاں یہ سارے نبی بڑی شان والے ہیں، تو پھر اس نبی کا میلاد نہ کریں، اس نبی کا ذکر خیر نہ کریں؟ میرے بھائیوں وہ نبی ہم سے اتنی محبت، اتنی معدت، اتنی الفت رکھتے ہیں، یاد رکھیے گا کوئی ماں بھی اپنے بیٹے سے اتنی محبت نہیں کرتی جو محبت رسول اللہ اپنے غلاموں سے کرتے ہیں۔ ہاں میرے امام نے اس پر پورا نقشہ کھینچا ہے کہ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کر بلاتے یہ ہیں،
बाप जहां बेटे से भागे, लुत्फ वहां फरमाते ये हैं, कयामत का जब दिन होगा ना तो कोई किसी के काम नहीं आएगा। यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबती व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नी। कयामत के दिन हर बंदे को अपनी पड़ी हुई होगी, कोई किसी की तरफ नहीं देखेगा, कोई किसी का हाल नहीं पूछेगा, मगर एक हस्ती उस दिन जो गमज़दा होगी अपनी उम्मत के लिए, वो मेरे और आपके प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात होगी। तो उस नबी से प्यार ना करें। और याद रखना, हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी से इतना प्यार फरमाता है, अल्लाह सबसे ज्यादा जिस काम में जल्दी फरमाता है वो अपने नबी की ख्वाहिश को पूरा फरमाने में। सरकार की ख्वाहिश थी ना कि खाने काबा बैतुल्ला बने। 16 से 17 महीने हुजूर ने मस्जिद अक़सा की तरफ मुंह करके नमाजें पढ़ी हैं। हुजूर की ये ख्वाहिश थी कि अल्लाह खाना काबा को किबला बना, खाना काबा को हमारे लिए बैतुल्ला बना, हम इधर मुंह करके नमाज पढ़ें। मेरे मदनी आका नमाज ज़ुहर पढ़ रहे थे और हुजूर आसमान की तरफ बार बार नमाज में देख रहे थे। तो सरकार नमाज में बार बार आसमान की तरफ देख रहे थे कि ऐ परवरदिगार, खाना काबा को बैतुल्ला बना दे, खाना काबा को किबला बना दे। अल्लाह अकबर। प्यारे मुस्तफ़ा का चेहरे का आसमान की तरफ उठना अल्लाह को इतना पसंद आया कि अल्लाह फरमाता क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा। ऐ महबूब, हम आपके चेहरे का आसमान की तरफ बार बार उठना देख रहे हैं। ऐ महबूब, अपना चेहरा फेर दीजिए जिधर आप चाहें। अल्लाह ने मस्जिद हराम को किबला बना दिया है। तो आयशा फरमाती है कि अल्लाह ताला सबसे ज्यादा जिस काम में जल्दी फरमाता है वो काम क्या है? अपने महबूब की ख्वाहिश को पूरा फरमाने में। अपने महबूब की ख्वाहिश को, हुजूर की ख्वाहिश थी ना खाना काबा किबला बने, अल्लाह ने पूरी फरमा दी। तो मेरे भाइयों सुनो, जिस नबी की ख्वाहिश को पूरा फरमाने में रब जर्रा बराबर भी ताखीर ना करे तो फिर मुझे कहने दीजिए, कयामत के दिन उम्मत की बख्शिश करवाना हुजूर ख्वाहिश नहीं बल्कि सरकार उम्मत के लिए रोएंगे, हुजूर उम्मत के लिए गिरियाजारी करेंगे। ईमान से बताओ, वो नबी ख्वाहिश का इजहार करे, अल्लाह किबला बदल दे। अगर वो नबी उम्मत के लिए रो पड़े, अल्लाह उम्मत की बख्शिश ना फरमा दे। पेश हक मुज्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे और हमको हंसाते जाएंगे। आह किन आंखों से वो हमसे प्यासों के लिए दरिया बहाते जाएंगे। हाँ सरकार, हम गुनाहगार उम्मत के लिए रोते जाएंगे। मेरे इमाम क्या फरमाते हैं? अल्लाह क्या अब भी जहन्नम न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। हुजूर की उम्मत से मोहब्बत तो देखें। अल्लाह अकबर। एक शख्स है जिसका नाम अब्दुल्ला है, लक़ब उसका हिमार था। अरबी में हिमार गधे को कहते हैं। वो हुजूर से बड़ी मोहब्बत किया करता था और सरकार को वो हंसाया करता था और वो बार बार शराब पी लेता और हुजूर फरमाते इसको लगाओ कोड़े। जब बार बार आता ना तो साहबा ने कहा कि इस पर अल्लाह की लानत हो, ये बार बार शराब पीता है। हुजूर जलाल में आ गए, फरमाया ऐ मेरे गुलामों, तुम इसके इस अमल को तो देख रहे हो, तुम इसके इस अमल को क्यों नहीं देख रहे? ये अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, ये अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता है। तो मेरे भाइयों, हुजूर अपने गुलामों से किस कदर मोहब्बत फरमाते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर बैठे एक दफ़ा रो रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब जिब्रील को भेजा, ए जिब्रील जाओ मेरे प्यारे से पूछ के आओ क्यों रो रहे हैं, माजरा क्या है। जबकि अल्लाह जानता है नबी क्यों रो रहे हैं। जनाब अमर बिन आस से मरवी है, जनाब जिब्रील आते हैं, अर्ज करते हैं बंदा नवाज आप क्यों रो रहे हैं। हुजूर फरमाते जिब्रील
मैं अपनी उम्मत के मामले में रो रहा हूं, मेरी उम्मत का क्या बनेगा, मेरी उम्मत का क्या बनेगा। जिब्रील रब की बारगाह में जाते हैं, ए परवरदिगार तेरा नबी अपनी उम्मत का गम लिए बैठा है, उम्मत के गम में रो रहा है। अल्लाह फरमाता है जिब्रील जाओ मेरे नबी से कहो आप अपनी उम्मत का गम न करें, कयामत के दिन हम आपको राजी करेंगे, आपको रुसवा नहीं करेंगे। जनाब जिब्रील हुजूर की बारगाह में आते हैं, फिर मेरे मुस्तफ़ा क्या फरमाते, इज़न वल्लाहि ला अर्दा, फरमाते ऐ जिब्रील अगर बात ऐसी है ना, रब ने कह दिया है आपको राजी करेंगे, तो फरमाया ऐ जिब्राइल फिर सुन लो, मैं भी उस वक्त तक रब से राजी नहीं हूंगा जब तक अल्लाह मेरी सारी उम्मत की बख्शिश ना फरमा दे, जब तक अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश ना फरमा दे। हुजूर की उम्मत से मोहब्बत तो देखें, कुरान पाक की आयत है ना, जनाबे इब्राहिम खलीलुल्लाह ने कहा था ऐ परवरदिगार तू करीम है, तेरे बंदे हैं और जो नेकोकार है, फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी वमन असानी फइन्नका गफूरुर रहीम। जनाब इब्राहिम खलीलुल्लाह क्या कहते हैं, ऐ परवरदिगार जो मुती हैं वो तो है मेरे, और जो गुनाहगार है परवरदिगार वो तेरी रहमतों के सहारे हैं। वमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी वमन असानी फइन्नका गफूरुर रहीम। और जनाब ईसा क्या कहते हैं, इन तुअज़िबहुम फइन्नहुम इबादुक, ऐ परवरदिगार तेरे बंदे हैं, तू चाहे तो अज़ाब दे चाहे तो बख्श दे। तवज्जो है आपकी। जनाब इब्राहिम फरमा रहे मेरे मालिक जो नेकोकार हैं वो मेरे हैं और जो गुनाहगार हैं वो तेरे हैं। जनाब ईसा ये फरमा रहे ऐ परवरदिगार तेरे बंदे हैं, तू चाहे तो अज़ाब दे चाहे तो बोलो बख्श दे। मगर हुजूर क्या फरमाते हैं, ऐ परवरदिगार गुनाहगार भी मेरे हैं नेकोकार भी मेरे हैं। और फिर मेरे इमाम क्या फरमाते हैं, बद हैं तो आपके, भले हैं तो आपके, टुकड़ों पे तो आपके पले, अब रुख किधर करें। हुजूर आपके, बद हैं तो आपके, भले हैं तो आपके, टुकड़ों पे तो आपके पले, अब रुख किधर करें। सरकार हम गुनाहगारों के अतबार पर न जाएं, हुजूर जैसे भी हैं हमसे हजर करें। हुजूर जैसे भी आपके बंदे, अब कहां जाएं। याद रखना अल्लाह ताला ने हुजूर को इख्तियार दिया है, फरमाया ऐ नबी आपके पास इख्तियार है, अगर चाहो तो आधी उम्मत बख्शवा लो, अगर आप चाहें हम आपकी आधी उम्मत को बख्श दें, अगर आप चाहें तो हम आपको शफाअत का इख्तियार देते हैं, पसंद फरमाएं। अगर आप चाहें तो आपकी आधी उम्मत को क्या करें, बोलो बख्श दें। अगर आप चाहें तो आप हमसे शफाअत का इख्तियार ले लें। हुजूर ने क्या किया, ऐ परवरदिगार तू शफाअत का इख्तियार दे दे, अगर आधी उम्मत बख्शी गई तो आधी तो रह जाएगी, आधी तो रह जाएगी। ऐ मालिक तू शफाअत का इख्तियार दे, मैं बार बार तेरे हुजूर हाजिर होऊंगा, अपने गुनाहगारों की बख्शिश करवाऊंगा। और फिर याद रखना हुजूर ने क्या फरमाया, फरमाया कयामत के दिन मैं अपनी उम्मत के कबीरा गुनाह करने वालों की बख्शिश करवाऊंगा, कबीरा गुनाह करने वालों की बख्शिश करवाऊंगा। अल्लाह अकबर। और मेरे मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा कराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जनाब अनस फरमाते हुजूर कयामत के दिन मैं आपको कहां तलाश करूं। फरमाया ऐ मेरे गुलामों कयामत के दिन तुम मुझे हौज़े कौसर पे तलाश करना। हुजूर अगर आप वहां पर भी ना हुए, फरमाया कि फिर तुम मुझे मिजान अमल पे तलाश करना। हुजूर अगर वहां पर भी ना हुए, फरमाया फिर तुम मुझे पुल सिरात पे तलाश करना। ये तीन जगहें हैं। कयामत के दिन हुजूर कहां मिलेंगे, हौज़े कौसर पर, वहां ना हुए मिजान अमल, वहां ना हुए पुल सिरात पर। और फिर मेरे इमाम ने कहा, लोगों मालूम है हौज़े कौसर पे सरकार क्यों होंगे, सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जहां नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, उम्मती कहेंगे या रसूलल्लाह करम फरमाइए, हमारे हलक प्यास से परवरदिगार पे हुजूर खुश हो गए। और फिर मेरे इमाम क्या फरमाते हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं पिलाते ये हैं। तो सरकार हौज़े कौसर में अपने गुलामों को जाम पिलाएंगे। और फिर जब उम्मती मिजान अमल पर होंगे,
उम्मतियों के आमाल में नेकियां नहीं होंगी, सरकार क्या करेंगे? अपने भरम से हम हल्कों का पल्ला भारी बनाते ये हैं। जब उम्मतियों के आमाल में नेकियां नहीं होंगी, सरकार नेकियां डालकर उम्मतियों के वजन को परवरदिगार के हुजूर उसको वजनी फरमा देंगे। और फिर जब उम्मती पुल से राह से गुजर रहे होंगे और फिर फरियाद करेंगे, फिर हुजूर वहां तशरीफ ले जाएंगे और फिर हुजूर फरमाएंगे रब्बे सल्लिम सल्लिम, रब्बे सल्लिम सल्लिम उम्मती। मेरे इमाम क्या फरमाते हैं? सल्लिम सल्लिम की ढारस से पुल पर हमको पार लगाते ये हैं। तो हुजूर कभी मिजान अमल पुल सिरात हौज़े कौसर पर होंगे, उम्मती फरियाद करेंगे, सरकार पुल सिरात पे जाएंगे, उम्मती फरियाद करेंगे, उम्मतियों के नाम अमाल में नेकियां डालेंगे, उम्मती प्यास की फरियाद करेंगे, हुजूर भर भर के जाम पिलाएंगे। यारो उस नबी की हमसे मोहब्बत का आलम तो देखो। वो नबी हसनैन करीमैन के लिए नहीं, सैयदतुन निसा फातिमा ज़हरा के लिए नहीं, क़यामत के दिन भी वो नबी अगर गमज़दा होंगे तो मेरे लिए और आपके लिए होंगे। तो उस नबी से प्यार ना करें, उस नबी का जिक्र खैर ना करें, उस नबी का मिलाद ना करें जिसकी मोहब्बतों का आलम ये है। मेरे मदनी आका ने फरमाया अल्लाह ने हर नबी को एक दुआ दी है और हर नबी ने वो दुआ दुनिया में मांग ली है और मैंने वो दुआ बचा के रखी हुई है। हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन वो दुआ मांग कर अपनी गुनाहगार उम्मत की बख्शिश करवाऊंगा। वो दुआ मांग कर अपनी उम्मत की बख्शिश करवाऊंगा। तो जिस नबी की मोहब्बत का आलम ये है, उस नबी से फिर प्यार ना करें। बात ख़त्म करने लगा हूँ मेरे भाइयों। मिलाद में आए हैं तो मिलाद वाले के लिए तोहफा भी तो लाए ना। और फिर तोहफा क्या है मिलाद वाले के लिए? वो है नमाज। जो इलत कुर्रतु ऐनी फिस सलात, हुजूर ने फरमाया ऐ मेरे गुलामों, आप किसी की सालगिरह में गए जाएं, किसी के बर्थडे पे जाएं, उसके लिए कोई ना कोई तोहफा लेके जाते हैं ना। सरकार का यौम विलाद है तो कोई तोहफा लाए हैं, दुरूदों के गजरे वो आप लाए हैं। तो एक आज़म ये भी करके उठें, अगर उस नबी की आंखों को ठंडक पहुंचानी है, आज के बाद नमाज की पाबंदी करेंगे। हाँ, जो इलत कुर्रतु ऐनी फिस सलात, हुजूर ने फरमाया ऐ लोगों, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अच्छा, जनाब बिलाल को हुजूर क्या फरमाते? अरिहना या बिलाल, सफर में होते, हदर में होते ना, तो अरिहना या बिलाल, ए बिलाल खड़े हो जाओ, हमें सुकून पहुंचाओ, हमें राहत दो। बिलाल राहत किस तरह देते थे हुजूर को? बिलाल आजान के लिए आवाज बुलंद करते थे, सरकार को सुकून आ जाता था। नबी को राहत पहुंचानी है, आजान की आवाजें बुलंद हो, सरकार को सुकून मिला, आंखें ठंडी करनी है नबी की, तो नमाज की पाबंदी करो। आंखें ठंडी करनी है, नमाज की पाबंदी करो। सरकार का मिलाद मनाया, सारी रात सरकार की आमद के नारे लगाते रहे और हुजूर के जिक्र में झूमते रहे, लंगर भी तनावुल किया। याद रखो मेरे भाइयों, सुबह जाके नमाज फजर भी ना पढ़ी, नमाज फजर भी ना पढ़ी, तो याद रखो फिर तुमने हुजूर को राजी कैसे किया है। सरकार आखिरी उम्र में भी सहाबा के कंधों का सहारा लेके सरकार नमाज में हाजिर हुए। अम्मा आयशा फरमाती सरकार चल नहीं सकते थे, हुजूर के पांव जमीन पर यूं घिसकते हुए आ रहे थे, हुजूर अपने पांव यूं रख भी नहीं सकते थे। सरकार ने नमाज को फिर भी नहीं छोड़ा। ओ उम्मती, तू तो हट्टा कट्टा चल भी सकता है। नमाज फजर के लिए मौज़िन कहता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, ओ पगले नमाज बेहतर है नींद से, उठ जा। वो तो उठ के आता ही नहीं है। हय्या अला सलाह की सदा आई थी, हय्या अलल फलाह की सदा आई थी, कामयाबी की तरफ पलटो। और 11-12 बजे उठ के कहते हैं जनाब हमारे हालात खस्ता हैं, रोजी रोटी बंद हो गई है, किसी ने जादू कर दिया है। और नादान, किसी ने कुछ नहीं किया, ये तेरे नफ्स की शामत है कि रब को नाराज कर बैठा है। वमन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका, अल्लाह फरमाते लोगों, जिसने हमारे जिक्र से मुंह मोड़ा, हम उसकी मईशत को तंग करके रख देंगे। रोजी रोटी का तंग होना रब को नाराज करने की वजह से, तावीज़ों से नहीं होता, अमलियात से नहीं होता,
रब को नाराज करने की वजह से होता है। यही मिलाद का पैगाम है। आज से ये अज़म करके उठें कि जिंदगी की आखिरी सांस तक नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, मोहब्बत है वही काबिल कबूल जिसमें इत्तिबा है। वो मोहब्बत खोखली मोहब्बत जिसमें इत्तिबा नहीं है। आप माँ बाप के फर्मा बरदार हैं? नहीं, बस माँ बाप से मोहब्बत बड़ी करता हूं, उनका कहना नहीं मानता, ये मोहब्बत काबिल कबूल है? नहीं। मोहब्बत जिसमें इताअत भी हो। हुजूर आपका मिलाद करते हैं और आपके हर फरमान पर जान भी कुर्बान करते हैं, तो नमाज पढ़ेंगे। और हुजूर ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, जानते हो अफजल तरीन मुहाजिर कौन है? और मैं अफजल तरीन मुहाजिर वो है कि हर उस काम को छोड़ दे जिससे अल्लाह ने मना किया है। तो आज से हिजरत शुरू करो, जिससे अल्लाह ने रोका है रुक जाओ, रसूलुल्लाह ने जिस काम का हुक्म दिया है शुरू करो। अपनी जिंदगी का आज से एक नया बाब शुरू करो, नया बाब शुरू करो। नमाज नहीं छूटेगी साहिबो। नमाज की लत आपको ऐसी लगे, नमाज का नशा आपको ऐसा लगे, जल्लाद कहे जनाब फांसी का फंदा तैयार है, उससे कहो मियां 2 मिनट सब्र कर लो, नमाज असर का वक्त हो गया है, 4 रकात में नमाज फजर पढ़ने दो। ऐसी नमाज की आपको लत लगे, खुदा की कसम फिर जनाब फांसी का फंदा भी होगा ना, नमाज की मोहब्बत आपको ऐसा सुकून अता फरमाएगी, वक्त के बादशाह को वो सुकून नहीं मिलेगा मखमली बिस्तरों पे जो अल्लाह आपको चटाइयों पे नमाज पढ़ने का सुकून अता फरमाएगा। सुकून नमाज में है। लोग कहते हैं मौलाना सब कुछ है पर सुकून नहीं है। पगले, अंदर की जिंदगी बर्बाद हो गई है, अंदर वीरानगी है, अंदर उजाड़ आ गया है। नमाज पढ़ो, मिलाद वाला भी खुश होगा, रहमान भी खुश होगा। ये मिलाद का पैगाम है। सारी रात मिलाद तो किया और फिर लोग कहते हैं यार ये कैसे मिलादी हैं? सारी रात सरकार की आमद के नारे लगाते रहे, पर उस आमद वाले नबी ने कहा नमाज 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 नमाज। हुजूर ने फरमाया तुम जानते हो मुझे जो चीजें सबसे ज्यादा पसंद है उनमें से एक नमाज है। नमाज पसंद है मुझे, और नमाज में जो सुकून है ना मेरे भाइयों, मैं आपको बयान ही नहीं कर सकता। और बिलखुसूस नमाज फजर, नमाज फजर में जो मजा है ना, ओहो अल्लाह अकबर, मैं कुर्बान जाऊं। खुदा की कसम नमाजें सारी हैं, पर जो फजर का मजा है ना, ऐसा मजा किसी में नहीं है, ऐसा मजा किसी में नहीं है। आपको यकीन नहीं आता, आज सुबह करके देखिएगा। पूरा मोहल्ला सो रहा होगा, आप अकेले आएंगे आस्तीनें चढ़ाते हुए, मस्जिद में आके वुजू करेंगे, गिनती के चंद बाबे होंगे, और फिर आप नमाज पढ़े और फिर आसमान की तरफ रुक करके मालिक तेरा लाख शुक्र है तूने पूरे इलाके में से मेरा ही इंतखाब किया है, पूरे इलाके में से तूने मेरा ही इंतखाब किया अपने बारगाह में सजदा करने का। मालिक तेरा लाख शुक्र है, तेरा लाख शुक्र है। पूरा मोहल्ला सो रहा है, एक तो अकेला उठ के सजदे कर रहा है। कितना मजा आएगा नमाज फजर में। और याद रखना, और जो रब को नहीं भूलते दुनिया में, फिर रब उन्हें कब्र में भी नहीं भूलता। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम। जो दुनिया में अल्लाह को भूले हुए वो अल्लाह को नहीं अपने आप को भूले हुए हैं। फिर कयामत के दिन रब तुम्हारी तरफ नजर रहमत भी नहीं फरमाएगा, तुम्हें पाक भी नहीं करेगा अगर तुम रब को भूल गए। रब को याद करो, फिर कब्र की तारीकी रात भी आपके लिए रब रोशन फरमा देगा। और जिसे पाक है, हुजूर ने फरमाया कि जो बंदा नमाज फजर नहीं पढ़ता ना, हुजूर का फरमान है, अल्लाह फरमाता है यहूदी होके मरे, मजूसी होके मरे, अल्लाह फरमाता है मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, मर जाए, अल्लाह को कोई परवाह नहीं है। जो रब का नहीं है फिर रब उसका भी नहीं है। और हाँ, एक हदीस और भी है, जिसने नमाज फजर पढ़ ली, अल्लाह फरमाता है शाम तक हमारे फरिश्ते उसकी हिफाजत फरमाते हैं। रब की सिक्योरिटी में रहता है, रब की हिफाजत में रहता है। आज से आज़म करके उठो, घर वालों को जाके कहोगे बेगम जो हो गया सो हो गया, आज के बाद इस घर में नमाज की पाबंदी होगी। अपनी बेटियों से कहो, कुरान कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों जहन्नम की आग से बचो, घर वालों को बचाओ। आप अपनी औलाद को जहन्नम में झोंके जा रहे हो, नमाज का कहते नहीं हो। आपकी औलाद सुबह भी सोई हुई है, जोर की नमाज नहीं,
असर नहीं, मगरिब नहीं, इशा नहीं, फिर शिकवा क्या करते हो? अल्लाह मेरी सुनता ही नहीं है। तुमने सुनी थी अल्लाह की? नहीं, फिर रब तुम्हारी भी नहीं सुनेगा। वकान यअमुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़कात, और नबियों का ये तरीका था, नबी भी अपने घर वालों को नमाज का कहते थे। आप क्यों नहीं कहते नमाज का? बीवी की हर ख्वाहिश मानते हो, बेटी की हर ख्वाहिश मानते हो, बाप का हर कहा मानते हो, बेटा बाप का कहा मानता है, पर बाप बेटे से ये नहीं कह सकते बेटा जा नमाज पढ़ कर आ। कुछ तो खुदा का खौफ करें। वो लोग जो नमाज नहीं पढ़ते, याद रखना अंधेरी कब्र की रात में कोई किसी के काम नहीं आएगा। हाँ, हम ये समझते कि शायद मरने के बाद हमारी औलाद 100 कुरान, 200 कुरान, तीजा 40वां बरसियां पढ़ते रहो, सगीरा गुनाह माफ होंगे, नमाजें तो माफ नहीं होंगी जो छोड़ी हैं जानबूझकर। क्या वो माफ होंगी? नहीं। इमाम काबा भी आपके कब्र पे आके दुआ कर ले, नमाजें तो माफ नहीं होगी जो छोड़ी हैं आपने। 1,00,000 कुरान पढ़े जाए, नमाजें तो माफ नहीं होगी जो जानबूझकर छोड़ी हैं, फिर उसका क्या करोगे? आज से तहिया करें, जो नमाजें रह गई हैं कज़ा करें और कहें मालिक जिंदगी की आखिरी सांस तक हमने नमाज नहीं छोड़नी, जो रह गई अपने हबीब के सदके माफ फरमा दे। वक्त पर काफी है एक कतरा भी आबे खुश हंगाम का, वक्त पर काफी है एक कतरा भी आबे खुश हंगाम का। जल गया जब खेत बरसा तो मी फिर किस काम का, दोनों जहां में मकसूद गर तुमको आराम है, उसका दामन थाम लो जिसका मोहम्मद नाम है, उसका दामन थाम लो जिसका मोहम्मद नाम है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस महफिल पाक को जरिया निजात बनाए, और परवरदिगार हमारे मोहतरम जनाब अल्लामा शिराज कादरी साहब, मस्जिद इंतज़ामिया, अहले इलाका, अल्लाह सबको बरकतें अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।